बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied our topic of importance of acoustics and how to measure the speed of the sound by echo method. Now today is our last topic of this chapter sound, which will be ultrasound. This is the most important topic regarding long question, MCQs and short questions for the exam point of view. अगर इसके साथ साथ भी देखें तो if you look into the daily life or in the medical field, this topic of ultrasound have its importance. बहुत ज़्यादा इसकी importance है. अगर अल्ट्रासाउंड हमारे पास ना होता या उस पर रिसर्च ना हुई होती, साइंटिस्ट उस पर रिसर्च ना करते और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो उसको गैजेट्स की सूरत में हमें अप्लाई करके ना दिखाते, तो मेडिकल फील्ड को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग फिजिक्स एंड रिगार्डिंग wavelength, frequency and speed of the wave. So we are going to start first of all there is another topic before ultrasound, which is audible frequency range. I have already told you about what is the audible frequency range of a normal human ear. The audible frequency range of a normal human ear is 20 to 20,000 Hertz. This is the normal range. It means that the normal eardrum of a human ear can vibrate 20 to 20,000 times in 1 second. This is basically the definition of frequency, the number of vibrations in 1 second. But this range may vary from age to age. This range may decrease with the increase of age. As you can see in the old people, there is a problem of hearing. ठीक है, उनको ऊंचा सुनाई देता है जो काफ़ी ज़्यादा एज जिनकी हो जाती है. तो उसमें आपकी बुक में लिखा था कि जो रेंज है ये 20,000 हर्ट्ज से कम होकर कितनी हो जाती है, 15,000 हर्ट्ज. और हमने एक डॉग की एग्जांपल में भी देखा था कि डॉग की जो फ्रीक्वेंसी होती है उनको हम साइलेंट विसल बाहर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर यूज़ की जाती है, इसीलिए क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो 25,000 हर्ट्ज तक थी. सो 20 से 20 अगर 20 से कम होगी तब भी हम हमारे ईयर को वो सुनाई नहीं दे सकती, और अगर 20,000 से ज़्यादा हो जाती है तब भी हमें सुनाई नहीं दे सकती. नाउ I am going to read this article, audible frequency range. We know that sound is produced by a vibrating body, as we have already know that from the initial topics of this chapter, that the sound is produced by a vibrating body. A normal human ear can hear a sound only if its frequency lies between 20 and 20,000 Hz. It is a very important MCQs that the frequency range of a human ear is 20 to 20,000 Hz, normal human ear. In other words, a human ear neither hears a sound of frequency less than 20 Hz. मतलब 20 Hz से अगर frequency कम होगी तब भी हमारे कान को नहीं सुनाई देगी. Nor a sound of frequency more than 20,000 Hz. ना ही 20,000 Hz से ज़्यादा की frequency हमें सुनाई दे सकती है. So इस range के दरमियान या इस value पर अगर frequency होगी तब human ear उसको क्या कर सकता है, hear कर सकता है. Different people have different range of audibility. Audibility मतलब सुनने की काबिलियत, ऑडियो से निकला है. जैसे आप ऑडियो गाने के सुनने में वो कहते हैं ना कि ऑडियो उसकी सुनने, तो वो ऑडिबिलिटी ऑडियो से ही निकला है कि सुनने की जो काबिलियत है या सलाहियत है. इट ऑल्सो डिक्रीजेज विद एज. जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एज के साथ साथ क्या होता है, इस रेंज में कमी आ जाती है. यंग चिल्ड्रन कैन हियर अ साउंड ऑफ 20,000 हर्ट्ज. जो यंग होते हैं, यंग पीपल होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये रेंज बिल्कुल ठीक होती है. वो 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं. लेकिन बट ओल्ड पीपल कैन नॉट हियर साउंड्स इवन अबव 15,000 हर्ट्ज. मतलब आप देख सकते हैं कि 15,000 हर्ट्ज आ गया, मतलब ओल्ड पीपल की जो रेंज है वो 5,000 कम हो गई. इसका मतलब है कि एज के साथ साथ ये जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की, ये क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है. So it is a very important MCQs for old people. The frequency range is from 20 to 15,000 Hz. ठीक है.
ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज की आपके पास डेफिनेशन आ रही है। नेक्स्ट क्या है? द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, कि फ्रीक्वेंसीज की वो रेंज विच, जो कि अ ह्यूमन ईयर कैन हियर, जो कि इंसानी कान सुन सकता है, इज कॉल्ड द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल भी जैसे कि मैं बताया ऑडियो से ही निकला हुआ है, जो कि सुनी जा सके। सो व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज? द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी की रेंज जो कि एक इंसानी कान या ह्यूमन ईयर सुन सकता है, कैन हियर, is called audible frequency range. So it is the definition of the audible frequency range. उसके साथ साथ आपने वो रेंज भी नीचे लिखनी है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 9th क्लास में भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ डेफिनेशन नहीं बल्कि एक्स्ट्रा भी आपको लिखना पड़ता है if you want to gain maximum marks in the exam. Now we will move towards our main topic, which is ultrasound. So as we have discussed that the range of the frequencies which a human ear can hear is the audible frequency range. So what is the audible frequency range? 20 to 20,000 hertz. Now what are ultrasounds? Ultrasounds जो है वो बेसिकली 2 वर्ड्स का आपके पास कॉम्बिनेशन है। एक है आपके पास अल्ट्रा और एक है आपके पास साउंड। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि एक स्पेसिफिक अमाउंट जो कि फिक्स है उससे भी ज़्यादा। जैसे अगर आप लोग मोबाइल यूज़ करते हो तो मोबाइल में आपके पास जब आपकी बैटरी लो हो रही होती है तो एक होता है पावर सेविंग मोड, जिसमें जो आपकी जो ब्राइटनेस वगैरह है वो कम हो जाती है। एक होता है आगे अल्ट्रा पावर सेविंग मोड, मतलब अगर लाइट चली गई है या आपके पास मोबाइल का चार्जर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हो, एक ऑप्शन होती है आपकी एंड्रॉयड मोबाइल्स में भी होती है और आईफोन में भी होती है कि अल्ट्रा पावर सेविंग मोड पर मोबाइल को ले जाते हैं। अब अल्ट्रा मतलब वो पावर सेविंग मोड से भी एक बड़ी चीज़ है, एक ज़्यादा सेविंग मोड है जिसे अल्ट्रा कह रहे हैं, ठीक है, पावर सेविंग मोड से भी ज़्यादा। अल्ट्रा पावर सेविंग मोड में क्या होता है कि आप कोई ऐप्स नहीं चला सकते, सिर्फ जहाँ तक मुझे पता है कि उसमें इमरजेंसी कॉल्स या आप मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, और ब्राइटनेस भी बिल्कुल ब्लैक हो जाती है आपकी स्क्रीन, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, वो एक अल्ट्रा पावर सेविंग मोड होता है। उसका ये होता है कि अगर 5 या 10% भी बैटरी है तो आप आराम से 3-4 घंटे वो बल्कि इससे भी ज़्यादा निकाल देते, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड का क्या मतलब है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक्स। इसको अल्ट्रासाउंड भी पढ़ते हैं या अल्ट्रासोनिक्स भी पढ़ते हैं, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड क्या है? साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी हायर हो, अबव हो, किससे? 20,000 हर्ट्ज से। अब हमने पढ़ा कि ह्यूमन ईयर तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड को हियर ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो अल्ट्रासाउंड्स क्या है? अल्ट्रा है वो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा है। फिर से पढ़ते हैं, साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच आर इनऑडिबल टू ह्यूमन ईयर। अब जब वो उनकी फ्रीक्वेंसी की रेंज नॉर्मल ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी की रेंज से बाहर निकल गई, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर चली गई, तो वो ह्यूमन ईयर के लिए क्या होगी? इनऑडिबल होगी। इनऑडिबल का मतलब है कि जो ना सुनी जा सके। ऑडिबल जो सुनी जा सके और इनऑडिबल जो कि ना सुनी जा सके। सो साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी higher than 20,000 hertz which are inaudible to normal human ear are called ultrasound और ultrasonics, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इसे हम कहेंगे या हम इसे कहेंगे अल्ट्रासोनिक्स, ठीक है। सो ऐसी फ्रीक्वेंसी साउंड, ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ऊपर चली जाए, जो कि ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, उसको क्या हम कहते हैं? अल्ट्रासाउंड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पास जो कि आता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, कि अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है। सो इसके बहुत ज़्यादा हमारे पास यूजेस हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल फील्ड में तो इसने एक रेवोल्यूशनरी चेंज ला दिया अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी को कोई बीमारी होती थी, ठीक है, या कोई डिजीज़ होती थी, तो वो डिजीज़ डायग्नोज ही नहीं हो पाता था। 1-2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डायग्नोज, बायोलॉजी वाले बच्चों को इस चीज़ का ज़्यादा अच्छा पता होगा बनिस्बत कंप्यूटर वाले, लेकिन उनके लिए मैं बता देता हूँ। एक होता है डायग्नोज और एक होता है ट्रीटमेंट। डायग्नोज का मतलब होता है सर्च करना, उसको ढूंढना कि डिजीज़ है कहाँ पर या किस वजह से है डिजीज़, या जिसे आप तशखीस करना भी कहते हो, ठीक है, तशखीस करना, ठीक है। सो एक चीज़ है हमारे पास डायग्नोज, कि हम पहले ये देखें कि बीमारी किस वजह से है,
बीमारी है कहाँ पर, उसकी वजह क्या है, जड़ क्या है बीमारी की। डायग्नोज करते हैं कि इसको अगर बुखार हो रहा है तो ये बुखार किस वजह से हो रहा है, बॉडी के किस ऑर्गन में मसला है, ठीक है। और एक फिर डायग्नोज जब आप किसी चीज़ को कर ले तो पता लगा ले तो कि ठीक है यार इस बॉडी में मसला है, इसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन हो रही है, तो ये फिर डॉक्टर आपको दवाई देता है, वो होता है ट्रीटमेंट। फिर जब उसको वो डायग्नोज कर लेते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं, फिर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। सो डायग्नोज करने के लिए अगर डॉक्टर को ना समझ आ रहा हो कि बीमारी क्या है पेशेंट को, तो वो आपको ज़्यादातर हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने करवाया हुआ भी हो, वो कहते हैं कि आप अल्ट्रासाउंड करवाएं, कि मुझे नहीं समझ आ रही कि आपका कहाँ पर प्रॉब्लम है, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसको देखकर मैं आपको बताऊंगा कि क्या मसला है और उसके मुताबिक मैं आपको फिर आपका ट्रीटमेंट करूंगा। सो अल्ट्रासाउंड किस तरह होता है वो अब हम आगे जाकर देखते हैं, लेकिन पहले उसकी बेसिक्स को हम देख लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड में क्या क्या है। सबसे पहले आप नोट्स इस वक्त आपके पास पहुंच गए होंगे जब आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। नोट्स पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा क्योंकि उसमें रिव्यू क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में करेंगे। इस वक्त आप नोट्स जो हैं उनका पेज नंबर 8 ओपन कर लें, ठीक है। इस वक्त आपके पास नोट्स भी मौजूद होने चाहिए, पेज नंबर 8 उनका ओपन कर लें। पेज नंबर 8 पर आपके पास एंड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन अल्ट्रासाउंड, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन डेली लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपने क्या करना है, अल्ट्रासाउंड की डेफिनेशन हेडिंग देनी है उसकी, उसके नीचे उसकी डेफिनेशन जो कि यहाँ पर लिखी है वही आपने राइट डाउन कर दी। नेक्स्ट आते हैं जी हम यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। उसमें बुक में आपके पास हेडिंग्स नहीं बनी हुई, पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ नोट्स में आपके पास हर यूज की एक हेडिंग बना दी, ठीक है। हेडिंग से मैंने आपको बताया था कि एग्जामिनर पे ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डेवलप होता है। सो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। सबसे पहला है डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब अल्ट्रासाउंड जो होता है, अल्ट्रासाउंड जो वेव्स होती हैं आपके, उनकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, आप देख सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन विच वॉज v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर मैं देखूं, अगर मैं लेमडा को उधर ले जाकर डिवाइड कर दूं तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में इनवर्स रिलेशन बन रहा है मेरे पास, ठीक है। अगर मैं एक ही स्पीड की वेव भेजूं लेकिन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की भेजूं, ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो ये चीज, अगर मैं कांस्टेंट है, स्पीड मेरी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान एक इनवर्स रिलेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूंगा, वेवलेंथ मेरी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह मैं फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर दूंगा तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड है वो ये कह रहा है अल्ट्रासाउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जब उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है इसका मतलब क्या है कि एक सेकंड के अंदर बहुत ज्यादा वेव पास कर रही हैं एक पॉइंट पर से, ठीक है। जब ज्यादा वेव्स पास कर रही हैं एक पॉइंट पर से तो फिर क्या हो रहा है आपके पास, फिर वेवलेंथ आपकी कम हो रही है, वेवलेंथ शॉर्ट हो गई है, ठीक है। इसको अगर आप देखें तो वेवलेंथ क्या है, कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस है, या कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन के दरमियान। सो फ्रीक्वेंसी जब ज्यादा हो जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वेवलेंथ कम होने से क्या फायदा होगा अल्ट्रासाउंड्स की, हम इस प्रॉपर्टी को कि उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। जब उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तो उनकी वेवलेंथ ऑटोमेटिकली कम। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को वी अप्लाई दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ultrasounds, which is they have short wavelength in the detection of very small objects। इसका मतलब क्या है कि इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है। इसका मतलब है छोटे से छोटे पार्ट में भी जाकर पेनिट्रेट कर सकती हैं, उस पर दाखिल हो सकती हैं या घुस सकती हैं वहां पर, ठीक है। सो अगर हमने किसी छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट करना हो, फॉर एग्जाम्पल अपनी ह्यूमन बॉडी को ही लेते हैं, हमने छोटे से छोटे किडनी स्टोन को डिटेक्ट करना हो तो उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज करेंगे। अल्ट्रासाउंड क्यों यूज करेंगे, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वो छोटे से छोटे पार्ट के अंदर जाकर भी पेनिट्रेट कर सकती हैं और हमें बता सकती हैं कि यहाँ पर इशू है आपका। सो अल्ट्रासाउंड्स हैव स्मॉल वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी, ड्यू टू विच दे हैव स्मॉल वेवलेंथ। सो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब इसको रीड करते हैं, क्या कहते हैं, नोट से रीड कर रहा हूं मैं, पेज नंबर 9। अल्ट्रासोनिक वेव्स कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी। जब फ्रीक्वेंसी हाई है इसका मतलब है पीछे से एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। यही हमने
पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम ज़्यादा एनर्जी लगाकर प्रोड्यूस करें वेव को तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ज़्यादा एनर्जी लगाएंगे ज़्यादा वेव्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, उस लिंकी वाली एग्जाम्पल हमने देखी थी, अगर उसमें ज़्यादा मतलब उसको जग प्रोड्यूस करें, एनर्जी लगाएं तो ज़्यादा क्रस्ट और ट्रफ प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुई। सो ultrasonic waves carry more energy and higher frequency than audible sound waves। ये जो audible sound waves जिनको हम सुन सकते हैं, जिनकी रेंज 20 से 20,000 हर्ट्ज के दरमियान है, उनसे अल्ट्रासोनिक वेव्स की जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। Therefore, इस वजह से अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन क्या है, V is equal to F lambda। The wavelength of ultrasonic waves is very small and is very useful for detecting very small objects। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन V is equal to F lambda। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, और वेवलेंथ कम तो छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट में भी वो जाकर पेनिट्रेट कर सकती हैं और हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखें, ट्रीटमेंट इन डिफरेंट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहते हैं बीमारियों को, डिजीजेस को। ठीक है, इन मेडिकल फील्ड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू डायग्नोज एंड ट्रीट डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, यही मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। फॉर डायग्नोसिस, अब यहाँ वर्ड आ गया डायग्नोसिस, तशखीस करना, ऑफ डिफरेंट डिजीजेस, मुख्तलिफ बीमारियों की, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर। अब आपने कभी करवाया हो अगर अल्ट्रासाउंड, या कभी नहीं भी कराया तो उसका मैं आपको प्रोसीजर बता दूँ। जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उनको हम बेसिकली कहते हैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। ठीक है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट, जैसे बायोलॉजिस्ट होता है, केमिस्ट होता है, फिजिसिस्ट होता है, इसी तरह जो अल्ट्रासाउंड करता है उसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। ठीक है, अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट। सो वो उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है एक स्क्रीन होती है उनके पास। ठीक है, उस स्क्रीन के साथ एक, आप समझ लें, एक रिमोट टाइप लगा होता है। ठीक है, जिसको वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने अल्ट्रासाउंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कमर का अल्ट्रासाउंड करना है, या फॉर एग्जांपल किडनी का अल्ट्रासाउंड करना है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले एक जेल वगैरह है, कोई लोशन होता है ऊपर, उसको लगा देते हैं, और उसके ऊपर फिर वो जो रिमोट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि तार के साथ उस स्क्रीन के साथ अटैच होता है। जैसे आप फिगर 11.3 में भी देख सकते हैं कि एक स्क्रीन है, स्क्रीन के साथ अगर आप गौर से देखें तो एक तार के साथ एक रिमोट टाइप अटैच है। ठीक है, तार के साथ रिमोट टाइप अटैच है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो उस जो अल्ट्रासाउंड है उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। सो इस तरह से जो अल्ट्रासाउंड है वो यूज़ किया जाता है डिटेक्शन और डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीजेस। अब होता क्या है, वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उसमें क्या होती हैं, वो जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती है वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को जनरेट करती है। अब यहाँ पर सवाल आ सकता है, या किन बच्चों ने अल्ट्रासाउंड अगर जो देख रहे हैं उन्होंने कराया, तो वो कह सकता है कि हमें उन जो अल्ट्रासाउंड है उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। आवाज़ आपको इसलिए नहीं सुनाई देती क्योंकि आपकी जो ह्यूमन ईयर की रेंज है फ्रीक्वेंसी की, वो उस रेंज से ज़्यादा है, वो 20,000 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, इस वजह से आप वो साउंड हियर नहीं कर सकते। ठीक है, सो किया क्या जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर। बेसिकली वो जो रिमोट की मैं आपको बात कर रहा हूँ वो एक ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसको हम किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो डिवाइस या इक्विपमेंट यूज़ होता है उसको हम कहते हैं ट्रांसमीटर, जो कि ट्रांसमिट करता है, क्या करता है, पहुँचाता है। सो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर्स। These waves are reflected differently by different organs, tissues और tumors। Tumors भी basically हम tissues और organs का तो आपको पता होगा, बायोलॉजी वाले बच्चों को, या आपने साइंस में भी इसका पढ़ा होगा 7th 8th में। ट्यूमर्स क्या होते हैं, ट्यूमर्स हम कहते हैं कैंसेरियस सेल्स को। ठीक है, डिफरेंट, जैसे ब्रेन ट्यूमर का आपने नाम सुना होगा, ब्रेन ट्यूमर बेसिकली ब्रेन के कैंसर को ही कहा जाता है। ट्यूमर्स कहते हैं हम कैंसेरियस सेल को, जो कि कैंसर कॉज कर देते हैं बॉडी में। होता क्या है, जब हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को एंटर करवाते हैं विद द ट्रांसमीटर ह्यूमन बॉडी में, तो वो क्या करती हैं, वो जाकर रिफ्लेक्ट करती हैं। अब क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत कम है तो वो आपकी स्किन के अंदर से क्या कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी। बहुत शॉर्ट वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो वो इजीली स्किन के अंदर से पेनिट्रेट कर कर कहाँ चली जाएंगी, ऑर्गन्स में चली जाएंगी। ऑर्गन से जाकर वो क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके जब वो वापस आएंगी
टुवर्ड्स द रिसीवर, ट्रांसमीटर के जरिए हमने क्या किया था, ट्रांसमीटर के जरिए हमने उनको पहुंचाया था। वो क्या किया, उन्होंने रिफ्लेक्ट किया और वो वापस कहाँ पर आ गई, टुवर्ड्स द रिसीवर। अब रिफ्लेक्ट होकर जब वो वापस स्क्रीन पर आती हैं तो स्क्रीन पे जो अंदर का पूरा बॉडी का इमेज होता है वो अपीयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो आपके समझने की बात है, वो बात ये है कि हम उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो मैंने आपको बताया है, वही सिर्फ उस चीज़ को देखकर बता सकता है कि यहाँ पर क्या मसला है। इसलिए जब आपने अगर कभी अल्ट्रासाउंड करवाया हो तो वहाँ पर एक डॉक्टर बैठे होते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं उसको, यानी कि ट्रांसमीटर के जरिए, और साथ में कंप्यूटर पर उनके एक असिस्टेंट होते हैं जिनको वो लिखवा रहे होते हैं इंग्लिश में कि ये जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये ट्यूमर है या यहाँ सिस्ट है या इस तरह का कोई इशू है, तो वो साथ में लिखवा रहे होते हैं। वो जो आप कहते हैं ना अल्ट्रासाउंड की जो एक रिपोर्ट होती है, वो बेसिकली वो रिपोर्ट लिखवा रहे होते हैं जो कि बाद में फिर जाकर आप डॉक्टर को देते हैं, जो पढ़कर बताता है कि ठीक है यहाँ पर प्रॉब्लम है। सो होता क्या, जब अल्ट्रासाउंड आप करवा लेते हैं तो आपको उनका इमेज भी मिल जाता है, ठीक है। वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं जो आपका सारा अल्ट्रासाउंड, फॉर एग्जांपल किडनी का अल्ट्रासाउंड अगर करवाना है तो वो किडनी का जो इमेज आता है स्क्रीन पर ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो कहाँ आ जाता है आपके स्क्रीन पे, तो वो उसका प्रिंट आउट उसी रिपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। सो इस तरह अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि आपके जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो बॉडी की तरफ भेजी जाती हैं थ्रू अ ट्रांसमीटर, वो डिफरेंट ऑर्गन से रिफ्लेक्ट कर वापस स्क्रीन पर आकर एक इमेज बना देते हैं और उस इमेज के ज़रिए हम डायग्नोज कर लेते हैं कि डिजीज़ कहाँ पर है। These waves are reflected differently by different organs, tissues or tumors, etc. The reflected waves are then amplified to form an image of the internal organs of the body on the screen. Amplified का मतलब बेसिकली क्या होता है, हम उनका एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं। इसलिए बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा बेटर पिक्चर चाहिए होती है। अब अगर हम छोटे छोटे देखना शुरू कर देंगे तो हो सकता है उस स्क्रीन पर सही तरह विजिबल ना हो, तो उसको एम्पलीफाई कर देते हैं, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ा कर उसको ज़्यादा प्रॉपर इमेज हम स्क्रीन पर ले आते हैं। सो वो जो वेव्स होती हैं, द रिफ्लेक्टेड वेव्स आर देन एम्पलीफाइड टू फॉर्म एन इमेज ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। सच एन इमेज हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट्स इन दीज ऑर्गन्स, मतलब वो इमेज से हम क्या कर लेते हैं, फिर डिटेक्शन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूवल ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ब्लड क्लॉट्स का बायोलॉजी वाले बच्चों को और थायराइड ग्लैंड वाले का उनको पता होगा। मैं कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए बता दूं, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उसे हम बेसिकली कहते हैं जख्म के लोथड़े, आपने उर्दू में से सुना होगा। होता क्या है, जब खून बहना शुरू होता है, ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली आपने बड़ी ईद गुजरी है तो वहाँ पर भी देखा होगा कि खून जो है वो बहता रहता है, कुछ देर तक तो बहता रहता है, लेकिन कुछ देर बाद खून क्या होता है, जम जाता है, जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं, ठीक है। वैसे भी अगर आपका खून निकले, कभी कट लगे या खून निकले, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, आपका ब्लड क्लॉट बन जाता है, ठीक है। वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाता है, खून फ्रीज हो जाता है, आपके जम जाता है वहाँ पर खून, तो उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉट्स। सेकेंड है थायराइड ग्लैंड। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। उनमें से एक यहाँ हमारे नेक पे प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड। अब हर ग्लैंड को अपनी डेवलपमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। थायराइड ग्लैंड को, जो कि हमारे यहाँ नेक पे प्रेजेंट होता है, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आयोडीन रिक्वायर होती है। और आयोडीन का सोर्स क्या है, जो हम खाने में नमक यूज़ करते हैं, ठीक है। सो आपने देखा भी होगा, जब आप नमक लेने बाज़ार जाते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है, जब आप खासतौर पर नेशनल का आप नमक जब खरीदते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि उसमें आयोडीन प्रेजेंट होती है। सो कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी जो डाइट है जो कि आप ले रहे हो उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई है तो थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाता, ठीक है। ये बायोलॉजी में 10th क्लास में 3rd चैप्टर में है भी, ये ग्लैंड्स और हार्मोन्स का जो टॉपिक है उसमें है भी, कि वहाँ क्या हो रहा है, आपके पास प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो गई, तो जो आपका ये वाला पार्ट है ये थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है। आपने देखा भी होगा कुछ लोगों को, ठीक है। इसको बेसिकली एक बीमारी हो जाती है, उसे हम कहते हैं गोइटर, ठीक है। स्पेलिंग GOITR या आई थिंक GIOTR होंगे, वो आप देख लीजिएगा। गोइटर इसको हम कहते हैं, या उर्दू में इसको हम गलहड़ी भी कहते हैं, ठीक है।
गिलहरी इसको कहते हैं बन जाती है। होता क्या है कि वो जो यहाँ आपका जो हिस्सा है वो बहुत इनलार्ज हो जाता है। सो फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए कि वो कितना इनलार्ज हो गया है, उसका कितना साइज़ है, उसको भी हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। सेकंड, ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए या ब्लड क्लॉट्स की डिटेक्शन के लिए भी, क्योंकि उनका भी साइज़ काफ़ी छोटा होता है, वो नॉर्मल आप नहीं देख सकते, उसको भी हम अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ मेडिकल फील्ड में इसका यूज़ है। पावरफुल अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, मे बी 30-40,000 हर्ट्ज तक उनकी फ्रीक्वेंसी हो। सो पावरफुल अल्ट्रासाउंड इज नाउ बीइंग यूज्ड टू रिमूव ब्लड क्लॉट्स फॉर्म इन द आर्टरीज। ठीक है, एक आपके पास आर्टरीज होती हैं जिनमें आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आई थिंक होता है, और जो वेन्स होती हैं उनमें आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो आर्टरीज एंड वेन्स, वो कह रहा है आर्टरीज में से ब्लड क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए हम पावरफुल अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। Ultrasound can also be used to get the pictures of thyroid gland for diagnosis purposes। कि उसकी पिक्चर लेने के लिए भी कि वो कितना इनलार्ज हो गया, उसके लिए भी हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेडिकल फील्ड में इसका ख़त्म हो गया। अब हमारे पास आ रही है कुछ टेक्निकल फील्ड्स कि हम टेक्निकल फील्ड्स में अल्ट्रासाउंड को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। उसमें आपके पास एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं सोनार टेक्निक। सोनार क्या है? साउंड, ये SO जो है सोनार में वो है साउंड का। N स्टैंड्स फॉर नेविगेशन। नेविगेशन का क्या मतलब होता है? लोकेशन को फाइंड आउट करना कि कहाँ पर कोई चीज़ प्रेजेंट है। एंड रेंजिंग, कि उसकी कितनी रेंज है, कितनी रेंज तक वो है और कहाँ प्रेजेंट है। सो सोनार इज बेसिकली साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इस टेक्निक को क्यों यूज़ किया जाता है? इस टेक्निक को इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर हमने डीप इन द ओशन, समंदर के बहुत नीचे, बहुत गहराई में, ठीक है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना हो, या आपने देखा होगा समंदर के नीचे से मुख्तलिफ आपके पास जो मादनियात, मिनरल्स वगैरह होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं। सो उनका पता लगाने के लिए, उनकी डिटेक्शन करने के लिए, या आपको पता है कि जो आपके पास जब इंटरनेट की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये जो जितनी भी आपके पास सेटअप है ये बेसिकली समंदर के नीचे ही है। सो उस प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट करने के लिए हम ये सोनार टेक्निक यूज़ करते हैं। इसमें होता क्या है, हम अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं उनको हम शिप की मदद से विद अ सोर्स ऑफ अल्ट्रासाउंड नीचे भेजते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक शिप है, ठीक है, उस शिप के ज़रिए मैंने क्या किया है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को नीचे भेजा है। अब जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, अल्ट्रासाउंड वेव्स जब उस ऑब्जेक्ट पर जाकर स्ट्राइक करेंगी तो वो रिफ्लेक्ट करके कहाँ आएंगी, वापस आ जाएंगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट करके वो कहाँ आ जाएंगी, रिफ्लेक्ट करके वो वापस आ जाएंगी। अब जब वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएंगी तो उससे हमें टाइम पता चल जाएगा। हम स्टार्ट में क्या करेंगे, जैसे ही हम भेजने लगेंगे हम स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे या टाइम अपनी वॉच की मदद से नोट कर लेंगे, और जितने टाइम में वो जाकर उस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी और टकरा कर वापस आएंगी, जब वो वापस अल्ट्रासोनिक वेव्स वापस हमें स्क्रीन हमने लगाई होगी, स्क्रीन पे जब वापस आ जाएंगी अल्ट्रासोनिक वेव्स तो उनका इमेज हमारे पास अपीयर हो जाएगा। जैसे ही इमेज अपीयर हो जाएगा हम टाइम को नोट कर लेंगे या स्टॉप वॉच को बंद कर देंगे, हमारे पास टाइम आ जाएगा। टाइम हमारे पास आ जाएगा। वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें पता है। किस तरह पता है? आपके पास पेज नंबर 27 पर टेबल 11.2 जो कि मैंने आपको कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इसकी इंपॉर्टेंस आ गई। इसमें आप देख सकते हैं लिक्विड्स एट 25 डिग्री सेल्सियस, वहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर हम उस वाटर को कहते हैं जो कि मिनरल्स और इम्प्योरिटीज से बिल्कुल पाक होता है, उसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, उसमें डिस्टिलेशन परफॉर्म करके या मुख्तलिफ उस पर प्रोसेसेस करके उसको साफ़ किया जाता है। सो डिस्टिल्ड वाटर आमतौर पे हम लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री की लेबॉर्ट्रीज़ या फिजिक्स की लेबॉर्ट्रीज़। उसके बाद है सी वाटर में क्योंकि मिनरल्स प्रेजेंट हैं और भी इम्प्योरिटीज़ उसमें हो सकती हैं, सो उसमें स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट है। 1531 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। सो हमें स्पीड भी पता चल गई, हमें टाइम भी पता चल गया जितने टाइम में वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आए। सो हमें पता लग सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, सो इस फॉर्मूले की मदद से हम उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, उसको नेविगेट और उसकी नेविगेशन और उसकी रेंजिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स।
हम उनकी क्या कर सकते हैं, हम पता लगा लेंगे कि वो इतनी हाइट या इतनी डेप्थ पर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर एंड द टाइम ऑफ द रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड वेव्स। सो इस टेक्निक की मदद से हम जो डीप ओशन में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर कोई हमने निकालना है उनको या कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है उसको हम अल्ट्रासाउंड वेव्स की अल्ट्रासोनिक्स की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ लें। अल्ट्रासाउंड इज यूज टू लोकेट अंडर वाटर, मतलब जमीन के नीचे डेप्थ्स गहराइयों को, और इज यूज फॉर लोकेटिंग ऑब्जेक्ट्स लाइंग डीप इन द ओशन फ्लोर एटसेट्रा। ये जो ओशन के नीचे बहुत ज़्यादा डीप गहराई में है उनको लोकेट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। टेक्निक को क्या कहते हैं, द टेक्निक इज कॉल्ड सोनार। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सोनार की वो एब्रीवेशन एमसीक्यूज में पूछ लेता है। क्या है एब्रीवेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये टेक्निक क्या कहलाती है, सोनार। द साउंड वेव्स आर सेंट फ्रॉम अ ट्रांसमीटर, उसी तरह ट्रांसमीटर की मदद से हम साउंड वेव्स को भेजते हैं। एंड रिसीवर कलेक्ट्स द रिफ्लेक्टेड साउंड, रिसीवर कोई स्क्रीन भी हो सकती है या कोई रिकॉर्डर भी हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमीटर भेजता है और रिसीवर रिफ्लेक्टेड वेव्स को क्या करता है, रिसीव करता है। द टाइम लैप्स, टाइम लैप्स का मतलब क्या है, जो टाइम इंटरवल है पूरा स्ट्राइक करने का और रिफ्लेक्ट करने का, इज कैलकुलेटेड, उसको हम स्टॉप वॉच की या वॉच की मदद से कैलकुलेट कर लेते हैं। नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, हमें पता है कि वाटर में स्पीड की साउंड क्या है, नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओशन सरफेस कैन बी एस्टिमेटेड। अब एस्टिमेटेड का वर्ड यहाँ इसलिए यूज किया कि हो सकता है बीच में और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हों जिसकी वजह से हो सकता है साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट ना करें। साउंड वेव्स आपको पता है, साउंड वेव्स में डायफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन की भी प्रॉपर्टी है। सो हो सकता है कुछ वेव्स डायफ्रैक्ट कर जाएं, कुछ उसी के अंदर एब्जॉर्ब कर जाएं। ठीक है, सो हो सकता है वो लॉस आपके पास वेव्स हो जाए और आपके पास जो वापस आ रही हैं वो सारी साउंड वेव्स ना हो। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जी इतनी हाइट है सी से उस ऑब्जेक्ट की, हम एक्यूरेट हाइट नहीं बता सकते। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि बीच में ना साउंड वेव्स डायफ्रैक्ट हो और ना साउंड वेव्स एब्जॉर्ब। ठीक है, सो इसलिए हम साउंड इस तरीके से हम साउंड जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट फ्रॉम द सी लेवल और फ्रॉम द ओशन उसको क्या कर लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं। नेक्स्ट पर आए, नेक्स्ट पर आपके पास यूज इन सोनार टेक्निक, इसकी हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मशीनरी। अच्छा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है अल्ट्रासाउंड का। इसमें क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो मशीनरीज हैं हमारे पास, बड़े बड़े इंजन्स हैं या शिप के इंजन्स हैं, एरोप्लेन के इंजन्स हैं, या मुख्तलिफ मशीनरी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में कंप्रेसर्स, ठीक है, जो यूज़ हो रहे हैं, उनमें अगर आपके पास उनके अंदर पार्ट्स में, टूल्स में आपके पास क्या आ जाए, क्रैक्स आ जाएं, छोटे छोटे माइनर से क्रैक्स आ जाएं, तो वो हम खुद से आम इंसानी आँख या ह्यूमन आई से उसको विजुलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अंदर जाना है। एक तो उसके अंदर जाना बड़ा मसला, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है, और उसको फिर डिटेक्ट करना वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, उसी तरह हम ट्रांसमीटर के ज़रिए अल्ट्रासाउंड वेव्स को उस मशीनरी के पार्ट्स के अंदर भेजते हैं। जब उस मशीनरी के पार्ट्स के अंदर से भेजते हैं तो अगर तो कोई क्रैक प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर इजीली वापस आ जाएंगे, ठीक है, और जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर तो कोई क्रैक प्रेजेंट है अंदर मशीनरी के, तो हो सकता है जो वो रिफ्लेक्शन है वो इरेगुलर सी रिफ्लेक्शन हो जाए, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, सो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, हम साउंड वेव्स को ट्रांसमीटर की मदद से भेजते हैं, वो पार्ट्स पर जाकर स्ट्राइक करती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं वापस, और इमेज उसी तरह स्क्रीन पर अपीयर हो जाती है। हम देख लेते हैं कि जी अंदर जो मशीनरी का पार्ट है वो बिल्कुल क्लियर है, अगर तो क्लियर है तो बिल्कुल ठीक है, अगर तो वहाँ हमें कोई क्रैक विजिबल होता है, कोई छोटा सा क्रैक विजिबल होता है, तो फिर इसका मतलब है वो मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही, तो फिर आगे हम उसकी क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। सो इस तरह हम अल्ट्रासाउंड को जो बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं या फ्लॉज आ जाते हैं मशीनरी में, बड़ी बड़ी मशीनरीज में, उनको भी डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। अब यहाँ भी वेवलेंथ स्मॉल है तो वो मशीनरी के छोटे से छोटे पार्ट के अंदर भी क्या कर जाएंगी, पेनिट्रेट कर जाएंगी। सो आपके पास डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मशीनरी। क्रैक्स अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ मूविंग पार्ट्स, इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले हिस्से को, ऑफ हाई स्पीड हैवी मशीन्स। अब आपको पता है उनका आरपीएम बहुत ज़्यादा होता है, जो मशीनरी मूव कर रही होती है बड़ी हाई स्पीड से मूव कर रही होती है, सच एज टर्बाइंस
engines of ships and airplanes due to excessive use. अब वो बार बार रोज़ ही तो वो यूज़ हो रही हैं, तो जाहिर बात है कोई ना कोई मसला तो अंदर आना ही होगा. These cracks are not visible from outside but they can be very dangerous. मतलब वो कह रहा है बाहर से देखने पर हमें नहीं नजर आएंगे, लेकिन अगर वो आगे जाकर उन क्रैक्स की वजह से वो टूट गए तो फिर आगे जाकर मसला क्रिएट हो सकता है. Such cracks can be detected by ultrasonic. A powerful beam of ultrasound is made to pass through these detective wires. Beam मतलब जो रे होती है उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं. पावरफुल मतलब उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ बहुत कम होती है. While passing these waves are reflected by the surface of these cracks, कि उन क्रैक्स की सरफेस पे जाकर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट करती है. एंड फ्लॉज मतलब और क्रैक्स के अलावा और भी कोई अगर इशू वहाँ पर प्रेजेंट है. The comparison of the ultrasonic waves reflected from the cracks and from the surfaces of these parts can give a clue. ठीक है, एक क्लू हमें एक अंदाज़ा दे सकती है of the existence of the cracks, कि हमें जब हम स्क्रीन पे इमेज देखेंगे तो हमें एक अंदाज़ा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर कोई इशू नहीं है या ठीक है यहाँ पर कोई क्रैक प्रेजेंट है. सो वो हमें एक अच्छा सा क्लू दे सकता है. लास्ट आपके पास है रिमूवल ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया. Germs and bacteria in liquids can also be destroyed by using high intensity ultrasonic waves. High intensity means intensity sound energy passing through a point in 1 second through a unit area. इसका मतलब है high intensity का मतलब है कि वो 1 सेकेंड के अंदर बहुत ज़्यादा साउंड वेव्स पास हो रही हैं. हाई इंटेंसिटी का यही मतलब है ना कि एक पॉइंट में से, एक यूनिट एरिया में से बहुत ज़्यादा साउंड वेव्स पास कर दें 1 सेकेंड के अंदर. इसका मतलब है उसकी हाई इंटेंसिटी है. अगर कम साउंड वेव्स 1 सेकेंड में एक यूनिट एरिया में से पास हो, इसका मतलब है इंटेंसिटी लो है. सो वो ये कह रहा है कि जो लिक्विड्स होते हैं मुख्तलिफ आपके पास, इनमें अगर हमने जर्म्स और बैक्टीरिया को रिमूव करना हो, फॉर एग्जांपल वाटर है या कोई और लिक्विड है जिसमें से हमने जर्म्स या बैक्टीरिया को मूव करना हो, तो वो हम अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से करते हैं. अब जो आपके पास बैक्टीरिया हैं और जर्म्स हैं वो किसी ऑप्टिमम या स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ही ग्रो करते हैं. ठीक है, मतलब एक ख़ास टेम्परेचर अगर और एक ख़ास ह्यूमिडिटी या इन्वायरमेंट उन्हें दिया जाए तभी वो उसमें ग्रो करते हैं. अगर तो वो टेम्परेचर उनके ऑप्टिमम या उनके ग्रो करने के इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो सस्टेन नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो ख़त्म हो जाएंगे, किल हो जाएंगे. सो अल्ट्रासोनिक वेव्स, आपको पता है अल्ट्रासोनिक वेव्स की, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव हायर एनर्जी. ठीक है, तो अगर हायर एनर्जी, हायर बीम की हम फ्रीक्वेंसी की वेव भेजेंगे तो टेम्परेचर भी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा होगा उसका. सो जब वो बैक्टीरिया और मुख्तलिफ जर्म्स के पास जाकर स्ट्राइक करेगी तो वो उनको किल कर देगी, बिकॉज उनकी जो टेम्परेचर है, ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें वो रह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे. सो अल्ट्रासोनिक को हम इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं. सो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. इसको आपने हेडिंग के साथ ही जिस तरह नोट्स में लिखा हुआ है उसी तरह लिखना है. ये 2-3 दफ़ा बोर्ड के पेपर में आ चुका है. इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में, आज आपका ये चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया. आपके 2 चैप्टर्स जो हैं वो ये वीडियो लेक्चर्स के थ्रू कंप्लीट हो गए. सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी एक्सरसाइज, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे. इस लेक्चर में कोई भी आपको इशू हो so you can contact us through our WhatsApp number which will be given to you at the end of this video. You can send us a text message, voice message or an image and you can ask any question through this. आज के लिए हमारे लेक्चर इतना ही. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़.